देयर माइट बी इशू ऑफ आपको जैसे स्पेसिफिक माइक्रोफोन कुछ एक कमी हो सकता है, प्लीज फील फ्री, आप थोड़ा सा कमी गति होने से माफ कर दीजिएगा, ये एडवांस में बोल रहा है। और एक सिंगर आपको साथ में रख देगा, एक दो गाना जो निशी में भी आप गाने की कोशिश कीजिए, हम वो भी सिखाने की कोशिश करेगा। और इसका साथ दिल्ली में जाके मुंबई में जाके सर ये निशी कम्युनिटी क्या चीज है आप बिल्कुल बताइएगा। विद इट Nishi is the largest community of Arunachal Pradesh. We are having 14 MLA, the largest MLAs in Arunachal Pradesh, the largest community in our state. ये I don't want to show कि निशी बड़ा है, ऐसे नहीं है। We are celebrating the 7th Nyishi Youth Convention with the theme of infinite horizon, one voice to unleash the power of Nishi youth. I was planning to give a long speech, but due to the hectic schedule of our birthday, I'll keep it very brief. Across from the 7th district of Nishi, we are gathered here in the presence of Nishi elite society. There are so many things, so many issues is yet to resolve. I have invited all the former leaders since from 1982 who make the answer with great zeal to glorify the great Nishi. I am trying my best, but then I won't say I'm the best answer president. I'll keep my best. So yotanam siya walokam. With the theme of infinite horizon, one voice to unleash the power of Nishi youth. The minds of Nishi come together here at Sagalee. We should decide something. Nishi ka ekta alay bostu. Nishi ka sanctuary jo ka ekta alay bostu. It is my humble request to Nishi elite society, the former leaders of ANSU, the past chief ministers of our Nishi community, ngo bingarin. So Sagalee lapang hati so ekta mutpu declaration hub, ligu affirmation hub, jakrak movement hub. So Sagalee so ak declaration lok magay pip ka. Nasangga sangjunga nasangga mangjigab. No Nishi elite society president no Mabu Kiran no mulak tegab लाइल सो डिक्लेरेशन से मगे पिप नसंग आने वाला 25 आने वाला 30 years में क्या करेगा हम also hang dituju. For that I have kept panel discussion nisi nyubu nasang so ingder akamam ngogu kumpane arungul boso 17 am panel discussion matane ho bolo manail on the what line Sagalee so Nishi youth convention under the aegis of Nishi all Nishi students union so ekta declaration mage pip kal akam ataga ngondram humre garine so baru sam tegedul nulungam baru sam putungam jipi baka hulga jipi baka halgo pete tanlai ho nul ado 17 branch students union habung dapa dachtang chimaje kam chigedul nasang amingab ansu amingab so putung sa teba pip kal hengo humle garine arungul gyose busengam arungul borso panel discussion bolo ततर जागी ओबिंग सुतुज सी आगे जागी हो जरम मुल्क चीफ गेस्ट ने सीजे अंकर जितारे में दूसरा प्रोग्राम मलंगा दोष पाला वो प्रेसिडेंशियल स्पीच मलंगा सो योराम ला हो तो काम होता वो मलंगा बिंग या तो अतरतो निसे long live paya lingcho
Paling cuaci nabam dodum tungulam tenga malet be gyos ku gabe. Now we have a short sharing a message from veteran singer and playback singers of India, Sir Mohit Chauhan. Short sharing message from Mohit Chauhan. Mulai malaga telaju, mulai tuga gamin gamu telaju gabe. Achala gures tukai. ऑनरेबल मंत्री जी, किरण जी और यहाँ उपस्थित निशी कम्युनिटी के सभी एल्डर्स, बड़े लोग और बच्चे लोग, निशी स्टूडेंट्स यूनियन के कर्ता धर्ता लोग और उसके मेंबर्स जो हैं, जो सभी लोग यहाँ उपस्थित हैं, सबको मेरा नमस्कार। अरुणाचल से मुझे ऐसा लगता है कि मेरा कुछ पिछले जन्म का रिश्ता है। किरण जी के साथ मैं अरुणाचल कई बार आ चुका हूं। तवांग भी गया हूं, दिरांग गया हूं, बॉम्डिला, नाफरा, जीरो। और किरण जी जब भी अरुणाचल प्रदेश का जिक्र करते हैं तो बहुत एक्साइटमेंट होता है और यहां आके मैं बहुत खुश हूं। इसके दो खास रीजंस हैं। पहला एक तो ये है कि ये पहाड़ का इलाका है, आप सब लोग पहाड़ी लोग हैं और मैं भी पहाड़ी हूं, मैं हिमाचल प्रदेश का रहने वाला हूं। और पहाड़ों में जिंदगी कितनी खूबसूरत होती है, कितनी मीठी होती है, वो मैंने भी देखा है। हिमाचल में मैं पैदा हुआ, वहीं रहा, बड़ा हुआ, उसके बाद मैं दिल्ली और बॉम्बे आया। और दूसरा कारण ये है कि किरण जी के साथ, किरण जी ने जब मुझे फोन किया और बताया कि भाई हमको जाना है नाफरा और सगाली जाना है, तो मैं थोड़ा बिजी भी था, स्टूडियो में रिकॉर्डिंग्स थी, कुछ और काम थे, पर मैं सब छोड़ छाड़ के किरण जी के साथ आया हूं। क्योंकि किरण जी को मैं कभी मना नहीं करता, ये जो भी बोलते हैं अरुणाचल के लिए मैं हमेशा इनके साथ रहता हूं, रहूंगा। लेकिन उससे भी खास बात यह है कि अरुणाचल तो मैं घूमा हूं किरण जी के साथ, लेकिन उनके ससुराल में पहली बार आया हूं। और वो यहाँ के दामाद हैं, निशी कम्युनिटी के दामाद हैं। और हमेशा ऐसा होता है कि मैं उनको भाई मानता हूं अपना, तो जब भाई लोग दामाद के साथ उनके ससुराल जाते हैं तो बहुत अच्छी खातिर होती है, बहुत सेवा करते हैं लोग। तो आई एम रियली हैप्पी टू बी हियर। और किरण जी जो है हमेशा दिल्ली में अरुणाचल के बारे में बात करते हैं, यहाँ के लोगों के बारे में बात करते हैं, यहाँ की प्रोग्रेस के बारे में बात करते हैं और हमेशा वो सोचते हैं कि भी अरुणाचल को कैसे आगे बढ़ाया जाए। जबकि ये इतना करते हैं कि आज इनकी वजह से पूरे देश में नहीं, दुनिया में पूरी में अरुणाचल का नाम सब लोग जानते हैं आज किरण जी की वजह से। और किरण जी जो हैं वो बहुत एक पैशनेट, बहुत जोश है इनमें अपने प्रदेश के लिए, हमारे देश के लिए, और हमेशा यहां के लोगों के हित के बारे में सोचते रहते हैं। और मेरा आप लोगों से ये हमेशा वादा है कि जब भी किरण जी बोलेंगे, किरण जी जब भी मुझे आदेश देंगे, मैं इनके साथ अरुणाचल हमेशा आता रहूंगा। और मैं कुछ भी एज एन आर्टिस्ट, मैं यहाँ के लोगों के लिए कुछ भी अगर मैं कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ, कुछ यहाँ पर हेल्प कर सकता हूँ किसी भी तरीके से, यहाँ के जो आर्टिस्ट हैं, तो मैं जरूर करना चाहूंगा। तो किरण जी मुझे जब भी कहेंगे तो मैं उसके लिए तैयार हूं। और मैं बहुत बहुत आज खुश हूं। और जब भी मैं रीना जी से मिलता हूं, उनका जो प्यार और उनकी जो जोश, उनका मोहब्बत रहता है मेरे और प्रार्थना के लिए,
वो मुझे आज रियलाइज हो रहा है कि निशी कम्युनिटी में कितना जोश है, कितना प्यार है, कितनी मोहब्बत है और कितना टैलेंट है। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरी ये बहुत ख्वाहिश थी आज के किरण जी अगर इधर ही रह जाते रात को तो हम लोग इकट्ठा मिलके कुछ संगीत करते। क्यों, मजा आता ना अगर किरण जी रुकते यहां पर इनको जाना पड़ेगा। तो मैं किरण जी के लिए 2 लाइनें गाना चाहता हूं। ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, तोड़ेंगे दम मगर तेरा छोड़ेंगे ये दोस्ती। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। Thank you so much, sir, for your wonderful greetings and inspiring words. Thank you, sir. So kokang be ngule harabe risridar laju ngulge gyodi bunga abang achi ata nule migu nyot nyomangam hingam laka. So kokang be ngulge nisu dulu lungpangam kaula pebe paldoge bu bute abu gube rade abu gube singul kaula pebe paldoge jibu si achi Professor Tana Surin, President Nisi Elite Society, muloge gyonamam telaju. Malang achi lagu res to achi Tana Surin gebe. Lukuda achi lagu re laju kai. Good afternoon to all of you, Honorable the Union Minister, Sri Kiran Rijiju, who has come here today, the chief guest of this 7th Nyishi Youth Conventions 2023, and respected honored guest, playback singers Mohit Chauhan and his spouse Srimati Chauhan, and my all the central executive team of Nisi Elite Society, the vice president of headquarters and the vice president West, and other all secretaries, and today's special invitees of 15th Sagalee Assembly constituency, the legislator Sri Nabam Tukiji, and was also a former Chief Minister of the States. And there is a distinguished the galaxy of former presidents of all Nisi student unions and general secretary. I may not able to name them all. And my respected Sri Nabam Dodum, the president of ANSU, and Sri Gora Rikam, who is also organizing chairman of this 7th Nisi Youth Conventions 2023, and also the general secretary of ANSU, and his all enterprising office bearers teams, and all the ladies and gentlemen present over here in the dais to witness this a very important event, and all the my beloved students and the participants from 7 districts for this 7th Nisi Youth Conventions at Sagalee, and the parents
and guardians and all the Sagalee administrative centers, the official functionaries, and respected all the print and electronic medias, those giving coverage to these auspicious occasions. It's my honor and privilege to share a few of words, which is my thoughtful that I would like to rise on the occasion, and such as spectaculars, your warm greetings, and the cultural display was a mind-boggling and an eyepiece for everyone's. On this historic occasions, I would like to share with the ladies and gentlemen present, and here we have the union ministers, lawmakers are there, and the states government lawmakers are there. The few things which I would like to share is that it may be quite relevant in their planning and designings. Now, all Nishi student unions has completed the 41 years. Its journey of 41 years, this youth conventions is one of their flagship programs to unearth and discover the latent hidden talent of among the youths of the society in a either biennial or triennial event to showcasing their rich cultural heritage. And this is a very important moment for all the younger generations. Today, I feel strongly we have grown leaps and bounds and wide and far. But that may be of populations, say about we are 4 lakhs populations, because 2021 we could not have a census. 7 districts are fully inhabited, barring Assam's and Upper Subansiri and West coming. So, this populations is a sizable populations of this states out of a 14 lakhs populations. Now, our responsibilities using the social resources and social capitals for a productivity is very important, because youth is the vital and success of any nations and societies. So today in India, youths consist of 66% of the total populations. And as a youth, a sustainable development goals, the United Nations has earmarked a goal that harnessing the youth's minds and their abilities and ideas. Now today youths are to some great extent, they are drift away from the focus, objectives, and also the dedications to their career. Some of them are trying to make a life ease of early material gains, and overnight they want to have a demagogue in a society. These all are serious concerns for the parents. Today school education systems in the campus, hooligans and nuisance is becoming an order of the day. Now how to contain this? The youths must focus on that, and there must be some established social mechanisms of school alumni and parent partnerships. The council systems should be now introduced, and I would appeal from this platform that ANSU, the ANSU should make a lead on this, and where the parents body,
we are always with you. I think this quality control and discourage this use of the substance of abuse, the campus hooliganisms, and dreaming of overnight become a demagogue is injurious to our quality life and standard of life, and that leads to the highest number of dropouts in so far we have found. So youth must in this your technicals whether their subject is there or not, but I am told that there is a panel of the expertise and former student leaders are being invited to dwell on these different aspects of the matter. So my strong appeal is that a fiscal discipline, budgetary skill, that is, I think, somewhere we are always compromised. And that is what the material and the social resources and social mobilizations in terms of contributions and charities, these are sometimes not being transparent, not accountable, and going in a ease of compromise is leading to the next one is an easy source of donation economy. So this we should take very seriously. And I feel that youth should instill the very important idea of today focusing of Government of India recently formulated one of the largest the education document, National Education Policy 2020. It's outlined that India has been so far focused on the youth harnessing and educations on 0.39 only. But in a recent present government, I think they have made it quantum jump by 2.9 out of target of the 6 point GDP. And I think Arunachal is a lion's share into some great extent, and that is what the controlling and monitoring is also equally accountable to the youth, that these all are well mannered, implemented in the grassroots level or not. Because today many of the children are studying without teachers. So ANSU may have a strong database and suggest to the parent body, including the government, for a well-informed information so that our some of the schools which are not functioning, this can be reintegrated, and those which are not functioning, that can be subsumed to the other functioning institutions so that we can have a focused and well-equipped infrastructure can be given the instead of piecemeal basis in the several villages and the several locations, because that also resources are, I think, not been able to manage. So today our youth should focus on educations, employment and the training. So we should no to the drugs and others, and we should instill the feeling of strong patriotisms and moral ethics and moralities, values, orientations, social curriculum should be engaged in a real-time basis, not only once upon a time and then you live in a decades, then you forget. So leader will come and go, but there should be a strong structure of code of your ethics should be there, which can be followed as a tenant and principle and impeccable guidelines, so that the next one will be not be tampering, diluting and misleading. So these are some of the things I think is mantras I would like to today appeal who are the youngers, they are listening me. And we should instill the younger one not to hate, and we should respect the old religion, faiths, creeds, caste, and the social institution and culture. Now there's some kind of elements are there which are dividing the youths on the line of the religion, that
This is a superstitious, this is obsolete, this is denigrating and disparaging and unwarranted. So I would appeal the President and General Secretary to look into this, that youth should not be taught to how to hate one another. Rather, they should form a national integrity and unity, and communal harmony should be fostered, and so that they will be tomorrow's futures of this nation. And today, I strongly feel that you all have all the potentials, the cracking in the best of the best examinations and the civil services and the states. But our states are now, to some extent, there is the restive and the impatience youth's minds are emerging, which I feel that our helms of the affairs who are looking after the state functionaries must evolve a concrete mechanism to address their problem. They should not allow to submit a memorandum after memorandum. If somebody is tweeted, if somebody is put in the social media, should be a parameter to draw a response. So this restive youth's mind and impatience is injurious to our sound governance systems also affecting. And today I think sizable populations are being affected. So government must develop a strong administrative mechanism to deal with to dialogues in a democratic process. To me, democracy means that I'm as good as you are, and you are as good as I am. So that is what we are agreed to disagree, and that is what the youthful mind should be engaged with a productive deliberations by real-time basis from the dialogue system should be established, not the base of the timing of 10 days, 15 days memorandum system should be, I think, discouraged. This is what the may somewhere in one side and lacking and another side is very proactive. So this imbalance needs to be addressed. Today age of doing anything governance and e-governance and reaching to the door states, I think students, communities and the younger generation should also have any kind of dialects or any kind of discussions should be always encouraged, and ultimately in a democratic setup, dialogue is the ultimate goal to resolve any kind of conflicts resolution, and so that should be always resorted instead of taking into the streets, washing dirty linen in the publics and briefing after briefing in the social media, throwing aspersions and the disparaging is, I think, unhealthy. So this is how we should be taking care. As a young mind, they are very bright, fertile, enterprising. It should be not polluted with the toxic idea of hating each other. And I strongly appeal that all the formers and the presents who are in the student leaders, they should take care, and as a youth of this nations is a backbone of this country. By this coming decades, the India will be the youngest country and the largest democracy, and that is what the honors lies with all you, that if you are not harnessing properly, nurture properly, and you may any time becoming a drift away from them, and that will be a unending social imbalance, and that will create a social disorder, and that create a tension, and that will lead to the disaster. And with this, I am very much thankful for listening me of the few thoughtful my feelings. I hope that all of you will do a very successful the 7th Nyishi Youth Convention, and whatever the deliberations and other outcomes should be come out with a black and white, that can be a suggestions, a document, instrument for the policy matters, and NES will also take care. So that is what
I always believe that any kind of your differences and your ideas must be discussed with informed knowledge, with matured ideas, and not bickering, and stay collective and be strong and be united, and there we stand and divided we fall. So we should work hard to harness our energy, time, and knowledge for a greater building of our society and this states. And with this, I wish you all a best celebrations of youth convention. And I personally thanks our playback singers, Rohit, Mohitji, who has come all the way from Delhi along with our honorable ministers. I think people loved you, and you also feel that you are from the hills, where also hills, only we have a distance difference. So I think you will hope, enjoy, and have a good time. And with this, I thank the organizing committee for giving me this chance to speak, and all the ladies and gentlemen, once again, thank you all, and wish you all the best. Thank you very much. Bayaling Chachi, Professor Tana Sorin, President Nyishi Light Society, Ngulga Pinkoso, Kima Pichangam, Kibu Tamsariama, Pichariabu, Kinu Jukugabe, Ngulge, Sankar Gikar, Sangchabo, Nimum Tamangabe, Anya Jabe Tamsar Jukugabe, Malanga Achigabeluku the Gures Tokai. So Kokungbe, Ngulge, Suluge, Ning Loing Tege, Gionamlo Telaju, Si welcome, Kiran Rijiju, Honorable Minister, Earth and Science, Government of India. Malanga achale guraj to ngulge mabu Kiran Rijiju gabe kai. थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले तो आज कार्यक्रम में इतना अच्छा से स्वागत किया, और जो वेलकम सॉन्ग, जो ग्रुप सॉन्ग गाया था, मुझे कुछ मीनिंग पूरा समझ में नहीं आया, लेकिन कुछ कुछ मीनिंग मुझे समझ में आया। तो बहुत ही हार्ट टचिंग वेलकम सॉन्ग के साथ फिर मेगा डांस बहुत खूबसूरत से सगाली हायर सेकेंडरी स्कूल के बच्चों ने इतना अच्छा से मेगा डांस स्वागत किया। फिर हमारे आंसू के दोनों प्रेसिडेंट, जनरल सेक्रेटरी अपना संगठन का बारे में बताया, और फिर हमारा बुजुर्ग सीनियर्स, फॉर्मर चीफ मिनिस्टर और प्रेसिडेंट एलिट सोसाइटी, और हमारे जितने भी यहाँ जो सीनियर बैठे हैं, सबके सामने में आज का निशी यूथ कन्वेंशन ये 7th बार हुआ है। मुझे भी पता नहीं था। उस दिन नाबम दोदुम और साथियों ने मुझे बताया कि काफ़ी साल गैप हो गया है, इसके लिए इस बार सगाली में प्लान किया है, आप जैसे भी टाइम निकल के आना है। फिर आज मेरा इटावा उत्तर प्रदेश में कार्यक्रम था, फिर उसको मैंने नेक्स्ट डे प्रपोज किया, क्योंकि मुझे यहाँ सगाली आना था। अभी मुझे बहुत ही जल्दी निकलना है, क्योंकि हेलीकॉप्टर जो है वो हमारे हाथ में नहीं है, ये टेक्निकल चीज़ है, कट ऑफ टाइम है, उसके बाद टेक ऑफ कर ही नहीं सकते हैं। 4 बजे से कार्यक्रम वहाँ शुरू हो जाएगा, 3 बजे गोलाघाट पहुँचना है, और अगर प्राइम मिनिस्टर का प्रोग्राम नहीं होता तो मैं आज यही सोना था। और मोहित चौहान जी ने भी मुझे बताया था कि आप यहाँ साथ में रहने से अच्छा है, तो मैंने उसी दिन आंसू प्रेसिडेंट और साथियों को बताया कि मेरा यहाँ रहना मुश्किल है, क्योंकि मेरा तय कार्यक्रम है। लेकिन 10 मिनट में मैं विचार को रखता हूँ, क्योंकि काफ़ी अच्छा चीज़ें हम लोगों को सुनने को मिला है। आज हमारे बीच में फॉर्मर चीफ मिनिस्टर तुकी साहब से लेकर के फॉर्मर आंसू का प्रेसिडेंट सेक्रेटरीज और आपसू के और सीनियर ऑफिसर्स सब यहां बैठे हुए हैं। साथ साथ में प्रेजेंट जो आंसू का एग्जीक्यूटिव टीम और निशी एलाइट सोसाइटी का
टीम बैठा हुआ है। यहाँ इनवाइटेड गेस्ट भी है। साजोलांग एलिट सोसाइटी का प्रेसिडेंट जॉनी बीजी भी साथ में आया है, और मेरे दोस्त मोहित चौहान जी, जो आप लोगों ने उनका बातें आप लोग ने सुन लिया है, और आज शाम को उनका गाना भी आप लोग को सुनने को मिलेंगे। हमारा देश में ऐसा कुछ सिंगर है जिसका कुछ गाना सुन के लोग पागल हो जाते हैं। उसका जो हिट फिल्म से जितना पॉपुलर गाना है, मैं तो आजकल नया फिल्म तो देखता नहीं हूँ, नया गाना भी इतना सुनता नहीं है, लेकिन मोहित जी का गाना सुनने को मिलेंगे, तो आप लोग शाम को जरूर एंजॉय कीजिएगा। आज का जो मकसद मुझे अच्छा दिल से इसलिए लगा कि ये जो अभी अंशु का टीम है, ये एक मुश्किल दौर में आया है। कोविड का समय में इन्होंने टेक ओवर किया और काफी काम मैंने देखा है, और जो थीम रखा है इन्फिनिट हॉराइजन, यानी कि बाउंड्री का कोई सीमा नहीं है, पोटेंशियल्स जो आपका संभावनाएं हैं, क्षमता है, उसका कोई सीमा नहीं होता है। उस थीम के साथ ये कन्वेंशन यहाँ सगाली में रखा है। और आने वाला आपका जो आज कल में बहुत इंपॉर्टेंट आप चर्चा करने वाले हैं, जो लोग उस पैनल डिस्कशन में चर्चा लेंगे, आप लोग गहराई से हर इशू पे चर्चा करना है। मैं आने से पहले सोच रहा था कि मैं क्या बात बोलूं। आज पॉलिटिकल लोग भी हैं, सोशल कल्चर ऑर्गेनाइजेशन के लोग भी हैं, विशेष रूप से यहाँ हमारा स्टूडेंट्स है। मैं सिर्फ एजुकेशन का बारे में बोलूं वो भी पर्याप्त नहीं होगा, सोशल कल्चरल इशू के बारे में जिक्र करूं तो भी काफ़ी नहीं होगा, या हमारा अरुणाचल का डेवलपमेंट के बारे में बोलूं तो भी काफ़ी नहीं होगा। तो इस बीच में मैं कुछ विचार रखता हूं, जो मैं हमेशा सोचता हूं कि ऐसा ही हमारा प्रदेश को आगे ले जाना होगा। मेरे पास में कई लोग आए हैं। जब मैं इस देश का कैबिनेट मंत्री बना, किताब लिखने के लिए बहुत लोग आए, और गांवों से, छोटा सा गांव से पढ़ के, पैदल चल के स्कूल, प्राइमरी स्कूल, गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ने वाला देश में कैबिनेट मंत्री बना है, किताब लिखना चाहते हैं। मैंने इतना ही कहा कि मेरे बारे में किताब मत लिखिए। मैंने किसी को परमिशन नहीं दिया मेरे बारे में किताब लिखने के लिए। मैंने सिर्फ इतना ही कहा, जिस दिन अरुणाचल पूरा डेवलप हो जाएगा उस दिन जरूर किताब लिखिए, उस दिन आप हमारा कंट्रीब्यूशन को भी लिखिए। मैं पॉलिटिकल आदमी हूं, मगर आप लोगों ने देखा होगा, मैं जब चुनाव लड़ता हूं और जब इलेक्शन में मैं अपने बात रखता हूं, मैं 5 साल का बात कभी भी नहीं करता हूं। आने वाले 5 साल में मैं क्या करूंगा मैं कभी नहीं बोलता हूं। मैं आने वाला एक जनरेशन के लिए क्या करना चाहता हूं उस दिशा में मैं बात करता हूं, क्योंकि हम कंपार्टमेंटल छोटा छोटा सोच की समाज को आगे नहीं ले जा सकता है। समाज को ले जाने के लिए एक पुख्ता आपका विजन, आपका रूपरेखा आगे कैसा होना चाहिए, ये क्लियर होना चाहिए। चुनाव में जीत करके कुर्सी में बैठ करके आप 5 साल गुजार देंगे, लेकिन उससे फायदा क्या है समाज के लिए। इसलिए मैं संक्षेप में इसी लाइन में बात करना चाहता हूं। हमारा प्रदेश किसी जमाने में कितना बैकवर्ड था, और जब हम लोग रिकॉर्ड देखते थे तो इंडिया में सबसे कम रास्ता कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश। इंडिया में सबसे ज्यादा गांव जहां अभी भी रास्ता नहीं पहुंचा कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश। इंडिया का लिटरेसी रेट में सबसे कम कौन सा स्टेट है? अरुणाचल प्रदेश। ऐसा अनगिनत, आज से 15-20 साल पहले जब हम देखते हैं पीछे मोड़ के, ईटानगर जो हमारा कैपिटल है वो भी सिंगल लेन, बाकी डिस्ट्रिक्ट का तो छोड़ दीजिए, कैपिटल में भी डबल लेन नहीं था। हम लोग नए नए राजनीति में आए, इस परिस्थिति में, ऐसा समय में हम लोग ने राजनीति में एंटर किया है। उसको ऊपर में और दुखी का बात यह है कि हमको कोई पहचानता नहीं है।
अभी मोहित चौहान जी ने जैसे बताया, दिल्ली में जाएगा तो भी कोई पहचानता नहीं है। अरुणाचल से बाहर जाते ही ये कहां से आया है कोई जानता नहीं। हमारे जो कॉलेज में 2-4 लोग बाहर कॉलेज में पढ़ते थे, वो भी बताते हैं कि अरुणाचल बताएंगे तो भी बताते हैं कहाँ है, आप नेपाली है क्या, कौन सा स्टेट का है। तो हम एक इकोनॉनिमस, जो गुमनाम, जो कोई पहचानता नहीं है, बहुत प्राउड से हम भारत माता की जय, प्राउड इंडियन, आई एम एन इंडियन, ये नारा लगा करके हम बैठते हैं, लेकिन हमारा पहचान भी नहीं था। ऐसा समय में हम लोगों के हाथ में कुछ काम करने का मौका मिला है। काम करते करते आज आप देखिए, अभी तुकी साहब ने बताया कि आज सुबह ही ईटानगर से आया है। आज सगाली से ईटानगर अब 1.5 घंटा 2 घंटा में पहुंच सकता है। सेप्पा से, कोलोरियंग से, दापोरिजो से आज ईटानगर पहुंचने के लिए कोई टेंशन नहीं है। आज दूर से दूर गांव तक मोबाइल टेलीफोन फैसिलिटी, एक गांव का आदमी भी मोबाइल फोन से किसी भी समय किसी को फोन कर सकता है। कई चीज में रेवोल्यूशन आया है, बहुत बदलाव आया है, लेकिन कई ऐसा चीज है जिसमें हमको बहुत बड़ा रिफॉर्म्स लाना है। मेरे ख्याल से अरुणाचल प्रदेश के लिए हमारा निशी जो एलाइट सोसाइटी और ऑल निशी स्टूडेंट्स यूनियन जैसा सोचता है, अरुणाचल का बाकी समाज भी उतना ही सोचना चाहिए, और कई लोग सोचता भी है। क्योंकि आज जिस परिस्थिति में हम लोग जा रहे हैं, हमारे निशी एलाइट सोसाइटी प्रेसिडेंट प्रोफेसर तना सोरेन जी ने अभी कहा कि धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे बांटने का काम हो रहा है। कई लोग अपना स्वार्थ फायदा के लिए आसान तरीके से समाज को बांट देता है। मैं लोकसभा एमपी होने के नाते कई लोग मेरे पास आते हैं, अभी तो डिस्ट्रिक्ट जाति जाति से छोड़ के कम्युनिटी से अंदर जाके अभी तो क्लैन में चले गए हैं। अरुणाचल प्रदेश में ये क्लैन बेस जो अभी फॉर्मेशन हो रहा है, ये एक फॉर्मेटिव स्टेज में है। एक तरीके से देखा जाएगा ये पॉजिटिव है, क्योंकि आपका लिनिएज, आपका जीनोलॉजी, आपका कौन सा पूर्वज है, कहां से आपका लिंग है, ये जानना जरूरी है। हिस्टोरिकली आपका लेगेसी, आपका हेरिटेज, इसके बारे में जानना जरूरी है। लेकिन डर इस बात का है कि इस चक्कर में हम परमानेंटली एक दूसरे से बांट ना जाए। हम एक कम्युनिटी से दूसरा कम्युनिटी, एक क्लैन से दूसरे क्लैन, एक धर्म से दूसरा धर्म कहीं बांट ना जाए। अरुणाचल अमीर होने से पहले कहीं हम बिखर ना जाए। कभी कभी समाज या किसी भी राष्ट्र का इतिहास में आप देखा होगा, कई राष्ट्र ऐसे संपन्न हो जाता है, अमेरिका, जापान, इंग्लैंड इतना अमीर हो जाता है, और कोई कोई देश अमीर होने से पहले टुकड़ा टुकड़ा हो जाता है। तो ये बहुत नाजुक मोड़ पे अरुणाचल खड़ा है। ऐसा अधिवेशन जब कन्वेंशन होता है, इसमें आपका एनर्जी को पॉजिटिव में कैसे डालना है, इसको लेकर के हर आपका वर्टिकल में जब चर्चा होता है, आप जरूर इसको चर्चा करना चाहिए। पॉजिटिव एनर्जी समाज का कल्याण के लिए बहुत काम आता है, और नेगेटिव एनर्जी समाज को तोड़ देता है। मैं दूसरा बात जो प्रोफेसर तना सोरेन ने कहा, आदमी बहुत कुछ सीखना होता है जिंदगी में, आदमी मरते दम तक सीखता है। आज मोबाइल फोन भी आ गया, इंटरनेट आ गया, तो मैंने देखा है कि एक समाज में एक बीमारी लग गया है। बीमारी यह है कि अपना माँ बाप का बात नहीं सुनना, अपना टीचर का बात नहीं सुनना, समाज में जो सीनियर है, पढ़ा लिखा, या जो गांव में बैठने वाला भी बहुत ज्ञानी होता है, गांव बूढ़ा होता है, समाज का बहुत जो हिस्ट्री के बारे में जानता है, उनसे हमको सीखना पड़ेगा। लेकिन जो नया बीमारी जो है, ऐसा हो गया कि आप सीखने से पहले ज्ञान देने लग जाता है। जो दुनिया देख चुका है, 40, 50, 60 साल हो चुका है, दुनिया देख चुका है, उसको 14, 15 साल का बच्चा भी ज्ञान देने लग जाता है। उल्टा बताता है
समाज ऐसा चलना चाहिए, सरकार ऐसा चलना चाहिए। ये सीखने का समय है। जितना सीखेगा उतना आप ज्ञानी बनेगा, और आप जितना ज्ञानी बनेगा उतना आपका सोच बड़ा होगा। आज मून में अगर हम रॉकेट पहुंचाते हैं तो रॉकेट पहुंचने वाला भी इंसान ही है। साइंस के दुनिया में हमको जाना है। हम सिर्फ पॉलिटिकल कल्चरल फील्ड में नहीं, हर दृष्टि में हमको आगे बढ़ना होगा। मैं आज जिस मिनिस्ट्री में मंत्री है, आज पूरा ये पृथ्वी का, अर्थ साइंसेस का, कब बारिश होना है, कब तूफान आएगा, कब यहाँ बादल फटने वाला है, आप इंटरनेट में देखते ना कल सगाली में बारिश आएगा कि नहीं आएगा, ये बताने वाला मेरा मिनिस्ट्री है। आजकल हम लोग ने डायरेक्ट इंटरनेट में डाल दिया है, गूगल में आप टाइप करेगा लिंक आ जाएगा, और ईटानगर में कितना बजे तूफान आने वाला है बता दिया जाएगा। अभी हम लोग अर्थक्वेक के बारे में स्टडी कर रहे हैं। सागर के अंदर में, पहाड़ के ऊपर में, पूरा जो विज्ञान है, आज तक मेरे अंदर में हजारों साइंटिस्ट है। मैं जब अर्थ साइंसेस मंत्री बना, मैंने ढूंढा कि कोई अरुणाचली है क्या मेरा मिनिस्ट्री में, एक भी साइंटिस्ट एक भी नहीं मिला। तो मेरा मिनिस्ट्री में इतना हजार साइंटिस्ट में एक भी अरुणाचल का लड़का लड़की साइंटिस्ट नहीं है। तो मैं खोज रहा हूं। अभी धीरे धीरे इस लाइन में भी लेंगे। जब मैं स्पोर्ट्स मिनिस्टर बना, मैंने कहा कि अरुणाचल आज तक नेशनल गेम्स में मेडल जीतता नहीं है। हम ऐसा तरीका करेंगे कि अगले कुछ सालों के अंदर में अरुणाचल के बच्चे भी नेशनल गेम्स में मेडल लेके आएगा, एशियन गेम्स, ओलंपिक्स खेलेगा। आज मैं आपको बता सकता हूं, जो हमने नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ईटानगर में खोला है, और अभी जो फैसिलिटी धीरे धीरे क्रिएट हो रहा है, अगले जो 28 ओलंपिक्स तक अरुणाचल को कोई बच्चा इंडिया का झंडा जरूर लहराएगा। ये हम लोग तैयारी कर रहे हैं। आज ये विषय नहीं है, इसलिए मैं टच करके आपको बोल रहा हूं। हमारा समाज में एक तरीके से एनर्जी बहुत है, और एक तरीके से देखा जाएगा तो एनर्जी जो है पूरा हम पॉजिटिव में हम यूज नहीं कर रहे हैं। आज जो सगाली में निशी यूथ कन्वेंशन कर रहा है, मैंने डिटेल अभी चर्चा नहीं किया कौन कौन सा टॉपिक पे आप लोग चर्चा करने वाला है, लेकिन आप जो भी चर्चा करेंगे, जिस भी सब्जेक्ट पे चर्चा करेंगे, आप लोग जो रिकमेंडेशंस वगैरह लाएंगे, वो सिर्फ आपका आंसू का गवर्निंग के लिए, आंसू का स्ट्रक्चर के लिए नहीं, अरुणाचल को आगे ले जाने के लिए हमारे युवाओं का क्या सोच है वो भी लेके आइए। और मैं नाबम दोदम और रिकम भाई को बोलता हूं, मुझे भी एक कॉपी तुरंत भेज दीजिए। हम भी इस आपका सगाली का यूथ कन्वेंशन में ऑल निशी स्टूडेंट्स यूनियन का इस गैदरिंग में क्या उभर के आया है मैं देखना चाहता हूं। और क्योंकि मुझे मालूम है हमारा नया युवा वर्ग का बहुत अच्छा सोच होता है, बहुत पॉजिटिव सोच होता है, इसलिए आज हमारा युवाओं को मैं सिर्फ जाते जाते, क्योंकि समय बहुत अभी मेरे पास नहीं है, कम है, मैं सिर्फ दो बात बताता हूं। जिंदगी में आगे बढ़ना है तो डिसिप्लिन तो होना ही पड़ेगा। डिसिप्लिन के बिना आप कुछ प्राप्त नहीं कर सकता है। हमने जब नया नया एमपी बना और पार्लियामेंट में पहला दिन घुसा, जब मुझे पूछा कि आप कहाँ का एमपी है, मैंने बोला कि मैं अरुणाचल प्रदेश का एमपी हूं। तो मुझे बोला कि ये अरुणाचल प्रदेश, आपसे पहले कौन एमपी था, और अरुणाचल प्रदेश जो है कहाँ में पड़ता है। तो मैंने बोला कि आपको पता चल जाएगा, मैं 5 साल एमपी यहाँ में रहने वाला हूँ, और 5 साल के अंदर में मैं 14 लोकसभा के बारे में बात कर रहा हूँ। 5 साल में इतना मेहनत किया डिसिप्लिन के साथ, रात का 1-2 बजे तक हर एक पार्लियामेंट का रूल, बिजनेस, नियम नीति पढ़ के मेहनत करके, और उसी 5 साल के दौरान में हमारा देश का सबसे बेस्ट यूथ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का मुझे अवार्ड मिला है। उसके लिए अवार्ड तो आसानी से मिल जाता है, लेकिन वो अवार्ड के लिए जो मेहनत, जो तपस्या करना पड़ता है, वो आसान नहीं होता है। वो अगर किताब लिखेगा तो वो जिक्र हो सकता है। तो ऐसा ही अगर मेहनत करेगा तो गांव में
बचपन में अंधेरा में पाइन ट्री जला के पढ़ने वाला भी आप यूनियन कैबिनेट मंत्री बन सकता है। ये कोई बड़ा बात नहीं है, सिर्फ थोड़ा सा डिसिप्लिन और मेहनत, ये दो जब तक नहीं होगा तब तक कोई भी इंसान आगे बढ़ नहीं सकता है। तो हमारे युवाओं में डिसिप्लिन ये बहुत जरूरी है, इसके बिना कुछ भी नहीं हो सकता है। दूसरा, कभी भी मांगने से पहले आप ये मत भूलिए कि आपको कुछ कंट्रीब्यूट करना है। कहता है कि जिंदगी लेने वाला से देने वाला बड़ा होता है। आप देने वाला, कंट्रीब्यूट करने वाला इंसान कैसे बन सकता है? हम अगर आज अरुणाचल को अमीर बना देंगे, आबाद बना देंगे, रास्ता वैसे अच्छा हो जाएगा, स्कूल अच्छा हो जाएगा, मेडिकल अच्छा हो जाएगा। आप कुछ बनाएंगे नहीं, अच्छा से आपके लिए, समाज के लिए कोई कंट्रीब्यूशन नहीं करेगा, तो अच्छा चीज कहां से आएगा? मैं कभी कभी राजनीति हमारा पार्टी के लोगों को बोलता हूं कि आप एमएलए उठेगा बोलता है और आसानी से भाषण दे देता है कि मैं एमएलए बनूंगा तो हमारा कॉन्स्टिट्यूएंसी का स्कूल ठीक कर देगा, मेडिकल ठीक कर देगा, रास्ता ठीक करेगा। तो मैं पूछता हूं, आप बताओ मुझे कैसे ठीक करेगा? कहां से लाएगा फंड? ठीक करने का वो रास्ता बताओ मुझे, तब मैं मानूंगा कि आपके पास प्लान है। ऐसे डायलॉग कहने के लिए भाषण ये तो कोई भी कह सकता है, कैसे करेगा ये बहुत बड़ी बात है। इसलिए मैं जब स्कूल में जाता हूं, कॉलेज में जाता हूं, मैं कभी भी नहीं बोलता कि अच्छा से पढ़ाई करो। मेरा अच्छा से पढ़ाई करो बोलने से बच्चा कभी भी नहीं पढ़ेगा। मेरा बोलने से थोड़ी ना मेरा पास जादू है कि लोग पढ़ने लग जाएगा। मुझे ये बताना है कि कैसा अच्छा पढ़ना चाहिए, कैसा आगे बढ़ना चाहिए, रास्ता बताना पड़ेगा। ऐसे ही यूनिवर्सल स्टेटमेंट देगा कि अच्छा से पढ़ाई करो, उससे कुछ होता नहीं है। इसलिए अपने आप ही रास्ता ढूंढना पड़ेगा। और पेरेंट्स, टीचर्स, एल्डर्स का रिस्पेक्ट ये बहुत बड़ा जरूरी है। मैं आज कह सकता हूं कि अगर निशी स्टूडेंट्स यूनियन रेजुलेशन लेगा कि हम अपना एल्डर्स को रेस्पेक्ट करेंगे, समाज का पुराना हमारा इतिहास को हम नहीं भूलेंगे, हमारा लीनियज, लेगेसी, हेरिटेज को लेते हुए हम नया समाज, नया निशी समाज, नया अरुणाचल खड़ा करेंगे तो जरूर आप सक्सेस होगा। आज हमारे लिए आपका और मैं, आपका प्रतिनिधि आज इस देश को चलाने वाला एक कैबिनेट मंत्री में से एक आपका एमपी बैठा हुआ है। उस जमाने में आपको मालूम है ना कि दपला को हटा के निशी करने में कितना संघर्ष करना पड़ा, लेकिन जब मैं कैबिनेट बन गया, एक झटका में अरुणाचल का जितना ट्राइब बचा हुआ था कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था, एक झटका में कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट कर दिया। ये आप जब पोजीशन में होता है, आपका बस ताकत होता है, आप कर सकता है, नहीं तो संघर्ष करते रहो, सुनने वाला कोई नहीं है। इसलिए हम पढ़ लिख करके अगर पोजीशन में बैठेंगे, अच्छा हमारे पास साधन होगा, समाज को सेवा कर पाएगा। आप कमजोर है तो खुद को भी नहीं संभाल पाएगा, दूसरा को क्या संभालेगा? आप संपन्न होगा, मजबूत होगा, नॉलेजेबल होगा, अपने आप को भी संभालेंगे, समाज को भी आप योगदान दे सकता है। इसी शब्दों के साथ, जैसे मैंने कहा, मैं थोड़ा बोलने का इच्छा था लेकिन समय का पाबंदी है, इसलिए मैंने बहुत टुकड़ा टुकड़ा में रैंडमली 10 मिनट में मैंने अपना विचार रखा। लेकिन ये सिर्फ मेरा एक फॉर्मल भाषण यही है, मगर असली जर्नी आपका रेजुलेशन, आपका जो इस कन्वेंशन 7th न्यीशी यूथ कन्वेंशन सगाली 2023 का जो रिकमेंडेशन होगा, उसको पूर्ण करना, लागू करना, वो असली मिशन होगा। वो मैं वादा करता हूं, आप पॉजिटिव रेजुलेशन लाइए, उसको पूरा करने में सबसे पहले कतार में मैं खड़ा रहूंगा। फिर से हमारा इतना सीनियर लीडर सबके साथ मुझे यहां बुलाया और आपको एक बात करने का मौका दिया, उसके लिए धन्यवाद। लेकिन कम समय और आज रात आपके बीच में नहीं रह पाऊंगा, उसके लिए क्षमा चाहता हूं। लेकिन मोहित चौहान जी को गाना को आप एंजॉय कीजिए, दिन भर मेहनत कीजिए, पढ़ा लिखा, डिलिबरेशन, डिबेट सब कीजिए, शाम को मोहित चौहान जी का गाना को एंजॉय कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।
Firing to